Friends, welcome to Wonder Biology. Today we are going to study about the important topic that is the nucleus, which is an important cell organelle. You all know that the cell organelles are the structures which are found within the cell. These are the subcellular structures which are mostly bound by a membrane. So very first we will begin with the nucleus. Before coming to the actual description of the structure of the nucleus, let us know about few things about the nucleus. Okay, these are some of the important points which you have to remember. So the very first point is the term nucleus was coined by Sir Robert Brown in the year 1831. सबसे पहले nucleus term को किसने coin किया था? Sir Robert Brown ने in the year 1831. It is one of the most important and one of the most prominent cell organelle. सबसे important cell organelle माना जाता है and it is also called as the brain of the cell or the control center of the cell. क्यों कहते हैं इसे brain of the cell? Because we know that आज जैसे कि brain जो है ना आपकी body के सारे functions को coordinate करता है, control करता है सारी activities को, तो वैसे ही nucleus भी cell की सारी activities को कौन सा काम कब होना है कैसे होना है. Okay, all these activities are controlled, the functions of the cell or the activities of the cell are controlled by the nucleus, and that is why nucleus is called as the brain of the cell or the control center of the cell. Now here we will discuss about the structure of the nucleus. I will show you a diagram also, but before that I just want to tell you about some of the important points or important terms which will come to know about here. So the nucleus is actually a double membranous structure. It means that it is surrounded by two layers or two membranes. Okay, the outer membrane and the inner membrane. तो दो membranes होती हैं जो nucleus को surround कर रही होती हैं. That is why it is called as a double membranous structure. Okay. देन द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर की कवरिंग है जो उसको कवर कर जो लेयर्स को कवर कर रही है उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके बाद बीच बीच में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ गैप्स होती हैं. ठीक है, तो जो अलाउ करती हैं सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस से बाहर जाने में या बाहर से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आने में हेल्प करती हैं. तो दीज गैप्स और दीज होल्स और दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स एंड दे अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड. Now quickly moving on to the diagram. This is the diagram I had drawn and I'm sharing it with you. So आप ध्यान से देखिए इस diagram को. This is the complete structure of the nucleus which is surrounded by what? Two layers, two membranes are there, double membrane is there. That is the inner nuclear membrane and the outer nuclear membrane, and these have been labeled by, as you can see here, इनको मैंने label किया है nuclear membrane. This one, see. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो membranes हैं ये outer और inner दोनों. These are the nuclear membranes, right? Then coming on to the स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड. यहाँ पे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस इज द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट हेल्प्स इन द राइबोसोम सिंथेसिस. राइबोसोम क्या है? राइबोसोम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके, व्हाट आर राइबोसोम्स? दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ organelles. Okay, so nucleolus का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, और सिंपली आप कह सकते हैं राइबोसोम के सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज डन. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब आप ये देखिए कि अंदर जो है, जैसे आपने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? फ्लूइड स्ट्रक्चर और विस्कस स्ट्रक्चर होता है. सॉरी, सेल के अंदर क्या होता है? विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. ओके, that is called as the cytoplasm. Okay, the fluid of the cell is called as cytoplasm. In the same way, the fluid of the nucleus will be called as what? It will be called as nucleoplasm. आपको ये दिख रहा है ये छोटे छोटे ये, this is the matrix of the nucleus, that is called as the nucleoplasm, right? This we have done. Then coming on to the next one. अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम में कि जहाँ जहाँ ये लेयर्स हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ तक है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये बीच में आपको कुछ होल्स नज़र आ रही हैं, कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं, राइट? सो दीज पोर्स, दिस वन, दिस पोर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? यहाँ पे जो एक पोर है, जो गैप है, फिर यहाँ पर एक गैप है, फिर यहाँ पर भी एक गैप है. सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर pores. तो ये क्या गैप है? These gaps are nuclear pores and they help in the transportation or transfer of substances from the inside of the nucleus to the outside into the cytoplasm, or from the cytoplasm to the inside of the nucleus, right? Then the next we have is, now you can see some highly coiled structures are present. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा in blue color I have drawn these highly coiled structure which is present all around. ये दिख रहा है आपको? Yes. So this highly coiled structure which is tangled together, जो आपस में काफ़ी उलझे हुए, जो coiling हुई है in thread like structures की, इनको हम बोलते हैं chromatin. Now chromatin is very very important. Chromatin क्या? It is the genetic material. ठीक है, जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, सेल डिवाइड करती है, आप सबने पढ़ा है सेल थ्योरी में, all the cells arise from pre-existing cells, means they keep on dividing, okay, to form new cells. So when a cell is not dividing, the genetic material of the cell will be in the form of highly coiled thread like structure.
ठीक है। जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इट कैरीज ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी आई का कलर क्या होना चाहिए, हेयर का कलर क्या होना चाहिए, हाइट कैसी होनी चाहिए, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है, डीएनए में, ठीक है। तो जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही होती उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन एक्ट करता है, यहाँ पर जब कोई सेल डिवाइड नहीं करी तो जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन एक्ट करेगा, क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन इज द हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन जैसे ही कोई सेल अगर डिवाइड करना शुरू होती है तो यही क्रोमैटिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही क्रोमैटिन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। तो आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला, ये क्रोमोसोम्स, दीज आर द, सी दिस स्ट्रक्चर, द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाया है, क्रोमोसोम्स। तो जब किसी सेल को डिवाइड करना होता है तो वो सेल जब डिवाइड करना शुरू करती है तो ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर था ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे सेल में फैला हुआ था यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमैटिन है वो धीरे धीरे कंडेंस करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे जो कॉइलिंग है वो कॉइलिंग जो है ठीक होकर के थिक होना शुरू हो जाती है और वो क्रोमोसोम्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है जैसा आपको यहाँ पे विजिबल है। तो यही ब्लू वाली स्ट्रक्चर इस तरह के स्ट्रक्चर को में रिजल्ट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। सो व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड नहीं करेगी तो द जेनेटिक मटेरियल विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करना शुरू करती है तो यही क्रोमैटिन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पर ये दिखाए हैं, ओके। सो दिस वी हैव डन विद ऑल दीज। नाउ आई जस्ट लिसन सी टू द दिस स्ट्रक्चर। आपको ये स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच्ड एक एक्सटेंशन हो रही है चीज़ों, एक यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देख रहे हो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी की जो एक्सटेंशन है इसको हम क्या बोलते हैं, यही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है जब फोल्ड कर रही है और वो आगे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, then it is forming which structure, it is forming this structure which is having some bead like structures। ये जो फोल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब एक आगे जाके फोल्डिंग्स बना रहे हैं और उस फोल्डिंग्स पे ब्लू कलर के बीड्स हैं, तो ये ब्लू कलर के बीड्स सबको नजर आ रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, यस। सो दिस इज एंड अनदर ऑर्गेनील दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको रफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी हुई है, स्मॉल बीड्स लगी हुई हैं, और इन स्मॉल बीड्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्मॉल बीड्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज, yes, these small beads are called as ribosomes, ribosomes, okay। So these small beads are called as ribosomes, and here okay, this was all the part of the nucleus, ठीक है। I have told you about the important parts also, the different parts, nuclear membrane है, nuclear pore है, nucleolus है, फिर chromatin क्या होता है, chromosomes क्या होते हैं, like that। There is one last slide which I would like to let you know about it। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड, ये बस एक रिविजन है जो हमने पढ़ा अभी स्ट्रक्चर में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। द हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस which acts as the genetic material, it is called as chromatin. When a cell is not dividing, the genetic material will be in the form of chromatin, okay। But as soon as a cell starts dividing, then the chromatin gets converted into what, it gets converted into क्रोमोसोम्स। वाई, बिकॉज वही क्रोमैटिन जो है अपने आप को अनकॉइल करना शुरू करती है और थिक होना शुरू हो जाती है, फिर वो क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम्स में। एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस proteins. So chromosomes are actually the structures, okay, which carry the genes, okay। क्रोमोसोम्स ही वो स्ट्रक्चर हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, एंड दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब डीएनए जो है सुपर कॉइलिंग करती है ना, जो डीएनए है वही डीएनए जब कॉइलिंग करता है तो वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जीन सबसे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस का जो भी कैरेक्टर्स हम पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है, वो जो है ये जो प्रोसेस है, इन सब चीज़ों को कौन गाइड करने वाला है, जो सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट सेल है, वैसे ही इनहेरिटेंस की, ओके, हेरिडिटी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, जीन्स होती हैं। एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। और यही डीएनए जब कॉइल कर जाता है बहुत ज़्यादा, आपको पता है डीएनए की लेंथ होती है 2 मीटर, लेकिन इसी डीएनए को न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का साइज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन 2 मीटर लॉन्ग डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखना भी तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए डीएनए क्या करता है, अपने आप को इतना ज़्यादा कॉइलिंग कर लेता है कि वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, अभी हमने पीछे भी देखा, क्रोमोसोम्स आर लाइक दिस।
तो डीएनए ने अपने आप को इतना ज़्यादा कॉइल कर लिया है कि नाउ इसकी जो सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए है दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स, राइट, एंड जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कि सो फॉर एग्जाम्पल कि सपोज अगर पेरेंट्स अगर टॉल हैं तो वेदर द चिल्ड्रन विल बी टॉल और एन एवरेज हाइट, और वॉट कलर ऑफ आईज विल बी देयर, वॉट कलर ऑफ हेयर विल बी देयर. So all these things are there. So this was all about the nucleus. The nucleus is called as the brain or the control center of the cell because it controls all the activities of the cell, right? Nucleus also stores the genetic material in the form of what? In the form of chromosomes बोल कह लो आप या फिर DNA कह लो, right? तो the nucleus also contains the genetic material in the form of chromosomes, and these chromosomes are found floating in the nucleoplasm. So this was all about nucleus. In the next video we will study about other cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, and what are their specific functions. So keep watching Wonder Biology. If you have any query, you can ask your query in the comment section, and then we'll continue in the next video. Thanks for watching. Take care.